आज मार्केट बहुत टर्बुलेंट था। मार्केट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कहते हैं ना कि बुल्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे और बियर्स इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे। मार्केट थोड़ा सा टर्बुलेंट रहने वाला है। आपको केवल व्यू के साथ आना। Hi investors and traders, I'm your host Dr. Seema Jain and I'm a SEBI registered research analyst. And today, market look little uncertain. When I'm saying uncertain, what does it really mean? Let's discuss about it. And it's not possible. I tried making two videos, one in Hindi, one in English, not possible. So I'm going to be mixing the language. So please bear with me and don't write that you speak in Hindi and don't speak in English, or don't speak in Hindi, you speak in English. You have to bear with me. So आज मार्केट बहुत टर्बुलेंट था। और किस लिए मैं टर्बुलेंट बोल रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि कैसे हाउ निफ्टी मूव टुडे. If you have a look at the futures of Nifty was quite turbulent. अगर आप 15 मिनट में इसको देखते हैं तो निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और फिर वहां से निफ्टी नीचे आई है और नीचे आने के बाद फिर ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गए. सो देयर इज इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट. कहते हैं ना कि बुल्स इसको नीचे नहीं जाने दे रहे और बियर्स इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे. तो मार्केट जो है एक रस्साकसी में फंसी हुई है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बाहर निकला जाए. बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि आज क्या हुआ बैंक निफ्टी में. Let's have a look at Bank Nifty. What happened on a shorter time frame? Open gap up, came down, went up. Again, experienced resistance and came down. So the Bank Nifty is also almost experiencing, and it has been range bound. All right. So what are the indices telling us? They are telling us to be cautious at this point of time. Let's see how our index was supported, what sector supported the index and what sector did not support the index. So देखते हैं कि कौन सा सेक्टर ने जो है इंडेक्स को सपोर्ट किया और कौन से सेक्टर ने इंडेक्स को सपोर्ट नहीं किया. तो जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आया वो है एनर्जी सेक्टर से. आप देखिए टाटा पावर, टोरेंट पावर, एनटीपीसी, जितने भी ये पावर स्टॉक्स हैं, आई थिंक जीएसडब्ल्यू पावर, आई डोंट नो, जीएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब में बहुत अच्छी रैली आई है आज के दिन. मेटल मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर मेटल पॉजिटिव है तो मार्केट हमेशा पॉजिटिव रहेगा. और आप नोटिस करिए आज मेटल ने अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस किया, which is a very strong point. Like ऐसा लगता है कि मेटल अगर स्ट्रॉन्ग रहेगी तो निफ्टी will get supported and there may be more up move that can be expected. इंफ्रा ने सपोर्ट किया है निफ्टी को. इनफैक्ट अपने पास्ट बैरियर को क्रॉस करके इंफ्रा ने क्लोजिंग दी है, राइट. मिड कैप ने लोअर लेवल से प्राइस रिजेक्शन हुआ है मिड कैप में. एंड पीएसयू बैंक अगेन इट्स अ इनडिसाइसिव स्पेस. Pharma is indecisive space. CNX small cap is indecisive. Reality is again there's a price rejection from the lower level and looks to be heading in the upper direction. The sectors which were actually under great fall. The first sector is FMCG sector. FMCG में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया. If I remember correctly, मैंने सुबह ही नोटिस किया था कि मैरिको में एक जबरदस्त यूनिसाइड फॉल आ रहा था मॉर्निंग में. Just have a look at it. Morning में Marico had given a good fall and after that it recovered. So FMCG was under stress, media was under stress, Nifty bank is under stress. So this is something to be, private bank is under stress. So what is important here is private bank opened gap up and then came down. So there is selling at the higher levels. There's selling pressure at the higher levels. So that's a point of a concern. CNX finance is at under stress. Bank Nifty is under stress. IT is under stress. So these are the sectors which are pretty much under stress. और उनके चलते almost like 50% sectors positive है, 50% sectors negative है. ऐसा लगता है इनको देख के कि थोड़े आने वाले दिनों में थोड़ा सा कुछ टर्बुलेंस हो सकता है मार्केट में रहे, मतलब मार्केट इनडिसाइसिव जोन में रहे. तो you have to be careful when you are trading. Okay, now let's have a look at Nifty and Bank Nifty and see the option chain. This is Bank Nifty. If you see, Bank Nifty
has a huge amount of in the money call writing at 39,500. And as far as the in the money put is concerned, there's a huge writing at 40,000. So the broader range for Bank Nifty could be 35,000 to 500, 35,500 to 40,000. सो जो एक रेंज रहने वाली है बैंक निफ्टी की वो 35,000 से लेके 35,500 से लेके 40,000 तक की रेंज रहने की पॉसिबिलिटी है टिल द एक्सपायरी। और निफ्टी में उसी तरह देखते हैं कि क्या हो रहा है। निफ्टी में जो है एक अनवाइंडिंग हुई है 17,600 पे और कॉल राइटिंग इंक्रीज हुई है एट द लेवल ऑफ 17,700, 17,700, 17,800 काफी कॉल राइटिंग हुई है। और जहां तक की पुट राइटिंग की बात है तो पुट राइटिंग इन द मनी पुट राइटिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई है एट द लेवल ऑफ 17,700। सो अगर हम निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी का एक सपोर्ट बन के आता है 17,500 पे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक रेजिस्टेंस बन के आता है 17,700 का। तो 200 पॉइंट्स का जो है एक आपका रेंज रहने वाला है निफ्टी में एज फार एज द ऑप्शन चेन इज कंसर्न। नाउ व्हाट वी विल डू, कुछ अच्छे स्टॉक्स ढूंढते हैं कल के लिए। So some of the stocks that are on my radar, the first stock out of them is Tata Steel. The first stock that is on my radar is Tata Steel. Tata Steel looks good to me for a buy above 109.25 or 110, you can say precisely, is a better place to enter. So Tata Steel is going to be on my radar as metal had a breakout. Metal has broken the past barrier. पिछला बैरियर मेटल्स ने ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है कि टाटा स्टील, वैसे मैंने बाइस की बहुत 107 से इसकी बाय दे रखी है, बट स्टिल एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखती है 110 के ऊपर। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है RIIL का, रिलायंस इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। बट कहाँ पे हमको लेना है, 1246 के ऊपर लेना है, बिकॉज उस जगह के ऊपर इसके सारे बैरियर्स क्रॉस हो जाएंगे एंड फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। एक स्टॉक और जो मेरे रडार पे है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ, that's a stock that's looking good to me. So ये स्टॉक जो है काफी दिनों से रेंज बाउंड है, काफी कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट लाने के लिए, बट कंसोलिडेशन जोन में है। और अगर आप देखेंगे तो 29 अगस्त को 1256 पे इसने एक लो लगाया था, ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी थी और उसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया था। फ्रेश ब्रेकआउट जो इसमें आता हुआ दिखता है वो 1318 के ऊपर आता दिखता है और पहला टारगेट हमारा 1333 का रहेगा। और अगर 1333 क्रॉस हो जाता है तो 1360, 1380, 1400 ये टारगेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये है SBI लाइफ। और एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ACC। आज टुवर्ड्स द एंड और जितने भी सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जैसे अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट है, ACC है, सब में एक अच्छा ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ACC आपको बाय करना है 2366 के ऊपर, अभी कुछ 2320 के ऊपर है, 2330 के ऊपर है। आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2367 के ऊपर फॉर अ श्योर टारगेट ऑफ 2400 और 2400 के बाद ये जा सकता है और ऊपर फॉर अ टारगेट ऑफ अबाउट 2500 और 2520 तक जा सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स मेरे रडार पे है कल के लिए, बट मार्केट थोड़ा सा टर्बुलेंट रहने वाला है। मार्केट में अनसर्टेनिटी है और एक जो सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स है विच इज एक कंपनी ऑफ स्टॉक्स है विच इज अदानी के जो 7 स्टॉक्स है, दे आर रियली पुशिंग द मार्केट अप। Every dip people buy and the stock starts moving in the upward direction. So strong support is being provided by Adani to the market. Let's see how long that support remains. I have already made a video about it. You can watch it, and in case I have written that is it very is are the here this is the video that I've made. Is Adani Group over leveraged? Is that simply means that have they borrowed more money from the market than what they have? So keep learning about the stock market because there is no option but to know your market really well. That's the only solution for really making money. There's a huge amount of money which flows in the market every single day.
certain trillion rupees are traded every single day. बहुत अरबों खरबों रुपए का आदान प्रदान होता है स्टॉक मार्केट में, बट आपको केवल व्यू के साथ आना, आपको केवल ये व्यू लेके आना है कि बाय करना है कि सेल करना है। उस व्यू के साथ अगर आप आएंगे तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी पैसा बनाने की। तो सीखते रहिए, जानते रहिए मार्केट के बारे में और ट्रेड करते रहिए। तो मेरे स्टॉक्स में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, टाटा स्टील, RIIL, ACC एंड SBI, ये 4 स्टॉक मेरे रडार पे है। लेट्स सी हाउ दे मूव टुमारो। With this, I'll be signing off, your host Dr. Seema Jain, and see you tomorrow in the live market from 10 to 11. The link is in the description box, and even the channel link, my Telegram channel link, is also in the description box. In case you don't get to see my channel, please come to the website, which is stockpro.online.com, and you can talk on this number with my team, and they will guide you through. All the best. Take care. See you in the next video.